Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Now this video is going to be a little different. In this video I am giving you notes on 3 important odes of John Keats. और remaining 3 odes हम next video में cover करेंगे. Now remember, this is not a line to line explanation. ये line to line explanation नहीं है. Here I am giving you only the notes जो मैंने बनाए हैं so that आपको इन notes के बारे में एक basic idea मिल जाए, important points पता चल जाए, important aspects पता चल जाए, so that अगर आपने ये odes नहीं भी पढ़ी हैं then also you will be able to attempt the questions, multiple choice questions, right? So let's get started. The first ode is Ode to Autumn. Ode to Autumn was written in the year 1819. Now remember, John Keats की सारी ही odes 1819 में ही लिखी गई. That's why the year 1819 is very important for John Keats. Autumn is regarded as season of mellow fruitfulness. यहाँ पे ये टर्म आपको ध्यान रखना है, mellow fruitfulness. Autumn को बोला है season of mellow fruitfulness. This ode is remarkable for its richness of imagery and autumn is personified. यहाँ बहुत अच्छी imageries दिखाई गई हैं और autumn को personify किया गया है. That means autumn को human being का form दिया गया है, human being की तरह treat किया गया है, human being की characteristics दी गई हैं. Ode में 3 important aspects हैं: fruitfulness, labor and ultimate decline. Remember the 3 important aspects of Ode to Autumn: fruitfulness, labor and ultimate decline. अब बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की. इन फर्स्ट स्टैंजा ऑटम एंड सन कॉन्स्पायर्स टू मेक फ्रूट्स ग्रो एंड क्रॉप्स राइप बिफोर हार्वेस्ट. दैट मीन्स यहाँ ऑटम और सन दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम फ्रूट्स को उगा सकते हैं. दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे सन को भी पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स. तो ऑटम और सन दोनों कॉन्स्पायर कर रहे हैं, दोनों प्लानिंग कर रहे हैं टू मेक फ्रूट्स ग्रो एंड क्रॉप्स राइप. Tells about bees that think summer will last forever. यहाँ पे bees के बारे में भी बात करी गई है जो ये सोचती हैं कि summers जो है वो हमेशा रहेंगी. Second stanza describe the period after harvest. Harvest के बाद का period describe करता है second stanza. And the third stanza describe music and images of autumn. Third stanza में autumn के music and images के बारे में बात की गई है. There are 3 stanzas in Ode to Autumn. फर्स्ट में ऑटम और सन कॉन्स्पायर कर रहे हैं, सेकेंड डिस्क्राइब द पीरियड आफ्टर हार्वेस्ट एंड थर्ड डिस्क्राइब म्यूजिक एंड इमेजेस ऑफ ऑटम. अब हम बात करते हैं इमेजेस की. थर्ड स्टेंजा में जो इमेजेस दिखाई गई हैं वो है क्लाउड और हार्वेस्टेड फील्ड की. 2 इम्पॉर्टेंट इमेजेस आर देयर, क्लाउड एंड हार्वेस्टेड फील्ड. और अगर हम म्यूज़िक की बात करें यानी साउंड की बात करें, gnats, lambs, cricket, रॉबिन्स एंड स्वॉलोज, इन सब की साउंड्स ओड टू ऑटम में बताई गई हैं. ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेट में ये क्वेश्चन आया भी है कि इनमें से किन की साउंड्स जो है ओड टू ऑटम में है, और ऑप्शंस में ये ऑप्शंस थे. तो अगर आपको पता है कि gnats, lambs, cricket, robins एंड swallows की साउंड है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ डिफरेंट रोल्स ऑफ ऑटम. ओड टू ऑटम में ऑटम जो है थ्रेशर का रोल प्ले कर रही है, हु इज सिटिंग ऑन ग्रेनरी फील्ड. हु इज़ अ थ्रेशर? थ्रेशर एक पर्सन होता है जो ग्रेन्स को दूसरे वेस्ट से अलग करता है, सेपरेट करता है. तो यहाँ पे ऑटम ने थ्रेशर का रोल प्ले किया है. रीपर अस्लीप इन ग्रेन फील्ड. रीपर को दिखाया गया है जो ग्रेन फील्ड में सो रहा है. रीपर इज़ द वन जो क्रॉप्स को काटता है. That is reaper, the one who cuts the crop. Third is gleaner. Gleaner is crossing a brook. Brook means छोटी सी river. Okay, तो gleaner person होता है जो छोटी छोटी portions में चीज़ों को collect करता है. Gleaner जो है वो brook को cross कर रहा है. And lastly a cedar maker. Cedar maker is the one who makes the cedar. तो 4 roles हैं जो autumn play करता है: thresher, reaper, gleaner and cedar maker. Suppose question है, which among these is not a role played by autumn in Ode to Autumn? Thresher, reaper, gleaner and sweeper. So the correct answer will be sweeper क्योंकि sweeper का role autumn personify नहीं करता है. Thresher, reaper, gleaner and cedar maker का role play करता है. So this was about Ode to Autumn. Now let's move to Ode on Melancholy.
इट्स रिटन इन द ईयर 1819, हमें पता है. एड्रेस द सब्जेक्ट हाउ टू कोप विथ सैडनेस. ओड टू मेलंकली एक्चुअली जो रीडर है उसे बताता है कि हम सैडनेस से बाहर कैसे आ सकते हैं. सबसे पहले वो बता रहा है व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए. जब हम बहुत सैड हैं तब हमें क्या नहीं करना चाहिए. फॉरगेट दिस सैडनेस, यहाँ पे वो बता रहा है कि हमें अपनी सैडनेस को भूल जाना चाहिए. लीथ रिवर का टर्म यूज़ किया गया है पोएम में. लीथ जो है वो रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है. लीथ को बोलते हैं रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. तो वो बोलते हैं कि हमें हमारी सैडनेस जो है वो लीथ रिवर में डाल देनी चाहिए, मतलब लीथ की तरह भूल जाना चाहिए. कमिट सुसाइड, अगर हम बहुत सैड हैं तो हमें सुसाइड कमिट नहीं करनी चाहिए. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है प्रॉस्पर पाइन का. प्रॉस्पर पाइन जो है वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी, ओके, जिन्होंने सुसाइड कमिट करी थी. तो वो कहते हैं कि हमें सुसाइड कमिट नहीं करनी है. बिकम ऑब्सेस्ड विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेथ, मिजरी, बीटल, आउल, डेथ माउथ. तो वो कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेगेटिविटी शो करते हैं, जैसे डेथ है, माइजरी है, बीटल, आउल को भी नेगेटिव बर्ड बोला गया है, या डेथ माउथ है, इन सब से हमें ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए. तो 3 चीज़ों के बारे में बात करी गई है. लीथ, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. प्रॉस्पर पाइन का एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि वी शुड नॉट कमिट सुसाइड. एंड देन वो कहते हैं कि हमें जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स से हमें ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए. और वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? डेथ, माइजरी, बीटल, आउल, डेथ माउथ. रिमेंबर द नेम्स, ओके, ये नेम्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की है. वॉट टू डू इन मेलंकली, अब मेलंकली में हमें क्या करना चाहिए. तो वो कहते हैं ओवरकम द सॉरो विथ नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो भी सॉरो है हमारे अंदर, जो भी पेन है, उसको हमें नेचुरल ब्यूटी से बाहर लाना चाहिए. मतलब नेचुरल ब्यूटी को जो गॉड ने हमें नेचर दिया है उसके थ्रू हमें अपना पेन भूलना चाहिए. नेचुरल ब्यूटी में यहाँ बात की गई है मॉर्निंग रोज की, रेनबो एंड आइज ऑफ बिलीविड. तो नेचुरल ब्यूटी में एक तो मॉर्निंग रोज के बारे में बात की गई है, रेनबो के बारे में बात की गई है, एंड आइज ऑफ बिलीविड की आइज के बारे में बात की गई है. लास्टली ही सेज प्लेजर एंड पेन आर लिंक्ड. वो कहते हैं कि प्लेजर यानी जो भी खुशियां हैं एंड पेन जो भी दुख है ये लिंक्ड है. ओके, द श्राइन ऑफ मेलंकली इज इनसाइड द टेम्पल ऑफ डिलाइट. वो मतलब पोएट कह रहे हैं कि अगर डिलाइट का टेम्पल है, खुशियों का टेम्पल है, तो उसी के अंदर मेलंकली की श्राइन है. दैट मीन्स डिलाइट और मेलंकली दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं. मेलंकली इज ट्रीटेड एज गॉडेस. मेलंकली को गॉडेस की तरह ट्रीट किया गया है. शी ड्वेल्स इन ब्यूटी दैट मस्ट डाई. मेलंकली जो है वो ब्यूटी में रहती है, दुख जो है वो ब्यूटी में रहता है और ब्यूटी को एक दिन मरना है. तो व्हाट इज़ देयर इन ओड टू ऑटम. तो ओड टू ऑटम में पोएट क्या बताना चाह रहा है. सबसे पहले वो बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. लाइक वी शुड फॉरगेट our sadness, we should not commit suicide, and we should not become obsessed with objects of death, misery, beetle, owl, death mouth, etc. And we should overcome our sorrow with natural beauty में morning rose, rainbow, and eyes of beloved. And then lastly he says that pleasure and pain are linked, and the shrine of melancholy is inside the temple of delight. Now let's move to the third ode on indolence. It's also written in the year 1819, and poet is talking about a morning spent in idleness. Ode on indolence में पोएट जो है एक ऐसी मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ वो आइडल बैठे हैं. ओके, उनके पास कुछ काम नहीं है, वो फ्री बैठे हैं और उस मॉर्निंग की वो बात करते हैं. वहाँ पे जहाँ वो बैठे हैं आइडली, वहाँ पे एक अर्न है. अर्न क्या है? एक पॉट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, एक वेसल होता है पॉट जैसा. तो उस अर्न पे 3 फिगर्स हैं, ambition, love and poesy. Remember, Ode on Indolence में 3 figures की बात की गई है, ambition, love and poesy. ambition को दिखाया गया है बहुत ही weak और anxious. love को दिखाया गया है, love appears as lovely women. एक women का structure है, एक सुंदर सी लेडी ड्रॉ की हुई है और उसे दिखाया गया है love की तरह.
एंड पोइसी इज़ अ डेमन दैट टेम्प्ट्स हिम द मोस्ट, और पोइसी को एक डेमन की तरह दिखाया गया है जो सबसे ज़्यादा पोएट को टेम्प्ट कर रही है. 3 important figures हैं ambition, love and poesy. All these resemble figures on an urn because they hold hands and rotate around, reappear several times. अब पोएट कह रहे हैं कि ये तीनों ही फिगर्स एक अर्न पे बने हुए हैं, एक पॉट पे, ओके, एक वेसल पे बने हुए हैं, और इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं. ओके, अब क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं यानी ये रोटेट कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड ये घूम रहे हैं, और इसीलिए ये सेवरल टाइम्स अपीयर होते हैं. कभी पोएट के सामने अम्बिशन आता है, कभी लव आता है, कभी पोइसी आती है, अगेन वो रोटेट करते हैं, दोबारा से अम्बिशन आता है, लव आती है, पोइसी आता है. तो दैट मीन्स कि ये जो है ये अर्न के ऊपर फिगर्स बने हुए हैं. दे हैड होल्ड हैंड्स एंड रोटेट अराउंड एंड दे रीअपीयर सेवरल टाइम्स. First, he is tempted to join them, but at their final visit, he asks them to leave so that he can enjoy his laziness. सबसे पहले तो पोएट बहुत टेम्प्ट होता है कि मैं भी इन्हें ज्वाइन करता हूँ, ओके, मैं भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, मगर जब वो फाइनल विजिट देते हैं तो पोएट उन्हें कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ सो दैट मैं अपने लेजीनेस को इन्जॉय कर सकूँ, अपने आइडलनेस को इन्जॉय कर सकूँ. ओके, की आइडियाज़ क्या हैं ओड ऑन इंड्योलेंस के? मूवमेंट वर्सेस स्टैटिक. हमें पता है कि यहाँ पे मूवमेंट दिखाया गया है, ओके, ये रोटेट कर रहे हैं, वर्सेस स्टैटिक. इटर्नल ब्लिस वर्सेस डिसअपॉइंटेड लव एंड ब्यूटी वर्सेस ट्रूथ. 3 की आइडियाज़ हैं, 3 फिगर्स हैं और 3 की आइडियाज़ हैं. ओड ऑन इंड्योलेंस का आप बस इतना ध्यान रखिए, 3 फिगर्स हैं, अम्बिशन, लव एंड पोइसी, and 3 key ideas हैं moment versus static, eternal bliss versus disappointed love and beauty versus truth. So these are the notes जो मैंने बनाए हैं इन 3 odes के ऊपर. Remaining 3 odes हम next video में cover करेंगे. If you like the idea of making such type of notes, then please subscribe to my channel, hit the like button and please comment in the comment box. Till then, all the best, keep learning, bye bye.